Good morning, fighters. So let's start the day with gratitude. So last day was hectic, so I was unable to make video. So here I added both day important question for you, 10th and 11th July. And in terms of both day, I have selected many question for you. So let's start all the details. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 जुलाई। सो आपको पता होना चाहिए कि 10 जुलाई को नेशनल फिशरी डे ऑफ फार्मर मनाया जाता है, जिसमें जो भी फार्मर है उनको फिशरी प्रोडक्शन के लिए इनकरेज किया जाता है और उनका जो जो भी प्रोडक्शन होता है उनको एक स्टैंडर्ड अमाउंट दिलाने के लिए नेशनल फिशरी जो है वो काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा 10 जुलाई का एलिफेंट सब स्पीसीज़ के बारे में। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और एशियन एलिफेंट जो इंडियन होता है तो इंडिया में इंडेंजर्ड के IUCN लिस्ट में है और मोस्ट वाइड स्प्रेड शेड्यूल वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर ये आते हैं। और देयर इज़ 2 टाइप ऑफ एलिफेंट विच फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फर्स्ट इज सुमात्रन and second is Sri Lankan. So if we see the today situation, Sri Lankan and Sumatran is already in endangered, critically endangered list, and one is also savanna elephant that is also in endangered list. So we can see that there is 150 elephant corridor in India according to 2010 census. So we can see that in West Bengal there is 26 corridor. It means there is 17% corridor in West Bengal. East Central India 35%, Northeast 32%, Southern India 21%, Northern India 12%. And we can see that there is 33 elephant reserve in India with 27,000 to 31,000 elephant population. A special conservation efforts started by Indian government according to Project Elephant 1992, where this centrally sponsored scheme by Government of India established many elephant reserve in India, promoted World Elephant Day for conserving and stopping poaching of elephants, nationwide campaign celebrating for elephant उनके सुरक्षा और उनके जो पोचिंग होता है उसको रोकने के लिए। एंड नाउ वी कैन सी दैट देयर इज अ क्वेश्चन इन द हिंदू, व्हाट इज ग्रेफीन? सो वी कैन नो अबाउट सम फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट ग्रेफिन्स। तो ग्रेफिन इज अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन हनीकॉम लेटिस। तो आपने हनीकॉम का छत्ता देखा होगा जिसके अंदर बनाया रहता है एक लैटिस जो बिल्कुल ग्रेफिन जैसा रहता है। और बेसिक बिल्डिंग ऑफ ग्रेफिन is just like graphite, charcoal and carbon nanotubes made by extracting single layer from graphite. And we can know about some properties of graphene. So this is the thinnest known material and lightest material also, and this is the strongest material discovered as more stronger than steel. Excellent electrical and thermal conductor is graphene, flexible and transparent, large surface area and almost completely transparent, absorb only 2.3% of light. So we can see that there is lots of property of graphene, so you can write it down and remember one by one each and every property, because in many examination this question is already asked, so this will help you in coming future examination. Now I will tell you about the application of graphene. So in the field of electronic, if we can see that what is the usage of graphene, so the usage of graphene is simple and clear as loud. Transparent conductor for solar cell, LED, touch screen and flexible display devices. So we can see that in electronic field the application of graphene is very important, because nowadays we can see that LED, touch screen and flexible display all are uses in renewable resources energy and in phone. Solar cell is uses in renewable sources of energy, and LED, touch screen and flexible displays in computer, laptop and phone. So already in a smartphone we can see that. So in the field of electronic
Graphene is most important in the field of medical, biomedical. We can see that targeted drug delivery and smart implants due to inert nature and ability to block oxygen water diffusion. So in the field of biomedical, this is also important because we know that the drug delivery and smart implants is very useful in nowadays. In the source of energy, we can see that smaller and slimmer batteries with high capacity, faster charging and long life. So we can see that in the laptop charger, mobile charger and many more chargers, they all are fitted with graphene. So this is also important for us. Now we can see that there is one question was given about Lok Sabha election. So in 2024 Lok Sabha election, we can see that the women representation was 13.6%. It means 74 MP. If we see in first election 1952, there was only 22 MP, which includes only 4.5% of MP in India. So we can see that there is 3 guna changes. We can say that if there was 22 MP in 1952 and 2024 74 MP. So this is a huge change, and we hope there will be many changes in coming scenario, and the representation of women will be increase in coming Lok Sabha election. Now there is one summit, COP26. So what is the commitment of COP26? So COP26 commitment is net zero emission by 2070, मतलब 2070 तक नेट जीरो इमिशन को अचीव करना है, और 50% रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 मीन्स कोल के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का और बाकी सोर्सेज के द्वारा, उसको कम करके 50% रिसोर्सेज जो है रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक अचीव करना है। और सेव क्या करना है, तो रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 1 मिलियन टन्स बाय 2030, 5000 gigawatt non-fossil energy capacity by 2030, and reduce carbon intensity by 45% in 2030. So you have seen many valuable information about all these things, and now I will tell you about one word that is mostly used in parliament. So you should know about what is expansion. So expansion is a word that used in कोरम ऑफ पार्लियामेंट, जहाँ पे अगर कोई भी पार्लियामेंट के मेंबर कोई भी अनएथिकल बात करते हैं तो गवर्नमेंट को आर्टिकल 15, 122 और 361A की तरफ से ये पावर है कि वो जो भी इलीगल बात, चाहे जो भी अनएथिकल बात करते हैं, उसको उनके भाषण से हटा सकते हैं फॉर मेंटेनिंग द डेकोरम एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज इन डिबेट्स ऑफ पार्लियामेंट। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत कुछ अनइथिकल बात बोल देते हैं, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग के अंदर ये लोकसभा के स्पीकर को आर्टिकल 15 और 122 और 361 के द्वारा पावर होता है, जिसमें वो से उनका जो भी अनइथिकल बात है उसको हटवा सकते हैं। नाउ I will tell you about some basic information about coal resources. So in last lecture I have told you about I will give you the all major producing of coal states. So I will mark on map and I will let you know. So let me tell you about something about coal. So fossil fuel from plant and animal fossil is called coal. Buried for millions of years under pressure and heat, then it get यूजेबल। सो वी कैन सी डैट कि इंडिया के अंदर 55% एनर्जी प्रोडक्शन कोल के द्वारा ही होता है, और अगर आप ग्लोबल कोल प्रोडक्शन के लिए देखें तो चाइना सबसे टॉप पे, सबसे ज़्यादा वहीं पे कोल प्रोडक्शन होता है। एंड इफ़ यू थिंक अबाउट कि इंडिया के अंदर कौन है, तो इंडिया के अंदर झारखंड है, उसके बाद उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है। सो 4 टाइप्स के कोल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक पीट होता है जो एकदम लोएस्ट क्वालिटी होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर ब्यूटिम्यूनस होता है जो मोस्ट कॉमन होता है, फिर एंथ्रासाइट होता है जो हाईएस्ट क्वालिटी का कोल होता है, जिसमें कि कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और एनर्जी आउटपुट भी बहुत ज़्यादा होता है। और इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सा है, तो झारखंड, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको ये मैप के अंदर मार्क करके दूंगा जितने सारे मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया के अंदर है। सो अब मैं कोल के ही रिलेटेड एक बात आना चाहूँगा कि रैट होल माइनिंग क्या होता है। तो आपने सुना होगा कि एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम नैरो एंड हॉरिजॉन्टल सीम्स, उसको हम लोग रैट होल माइनिंग कहते हैं। कॉमन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ड्यू टू थिन कोल सीम इन हिली रीजन and bunch in 2020. It was banned in 2024 by NGT due to danger to miners and environmental problems। तो रैट होल जो माइनिंग है मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में किया जाता है क्योंकि वहाँ पे नैरो पैच है कोल का, और नैरो पैच में वो जब वो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो काफ़ी सारा कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ता है, जिसमें प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल होता है और माइनर्स को भी प्रॉब्लम होता है। और इफ़ वी सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कोल, सो कोल इज़ ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर आप इसको ज़्यादा यूज करते जाएंगे तो एक बार ऐसा टाइम आएगा कि इट विल गेट डिप्लीटेड और ये ख़त्म हो जाएगा। सो हम लोग को इसका अल्टरनेटिव करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे सस्टेन करना चाहिए फ्यूचर के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बदावन पोर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि बदावन पोर्ट कहाँ पे है। तो बदावन पोर्ट जो है वो पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट कंस्ट्रक्ट होने वाला है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका टेंटेटिव डेट जो कंप्लीट करने का है वो 2030 तक है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ रुपये अलॉट किया है इस पोर्ट को बनाने के लिए, जो पोर्ट वर्ल्ड के टॉप 10 में काउंट में आएगा। इतना बड़ा पोर्ट बनाया जा रहा है। तो यू शुड रिमेंबर वेयर इज़ बदावन पोर्ट। तो बदावन पोर्ट इन पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। एंड व्हाट इज़ टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्लीटिंग, तो 2030 इज टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्लीटिंग एंड 76,000 करोड़ रुपीज़ अलॉटेड बाय कैबिनेट। एंड नेक्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन ओशियन। तो अब हमें पता होना चाहिए कि 200 नॉटिकल माइल तक स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसके अंदर एक कंट्री का हक होता है कि वो उसके अंदर जो भी ड्रिल या फिर ऑयल रिसर्च या जो भी मरीनरी रिसर्च जो भी है वो कर सकते हैं और उन पे उनका हक होता है। तो आपको पता होना चाहिए एक नॉटिकल मील में 1.86 किलोमीटर होता है। तो अगर 200 को 1.86 से इंटू करेंगे तो इट मीन्स 372 किलोमीटर। तो 372 किलोमीटर जो होता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, जहाँ पे एक कंट्री कुछ भी रिसर्च या कुछ भी वो अपने अनुसार से कर सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी प्राइम मिनिस्टर रसिया के विजिट पे गए थे। तो ये पहली बार हुआ कि इंडिया एशियन कंट्री का विजिट नहीं किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और ये रूल ब्रेक हुआ और वो गए दूसरे कंट्री के अंदर जो आउट ऑफ ग्लोब है, मीन्स एशियन ग्लोब से बाहर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे उनको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है उनसे किया गया है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एपोस्टल है वो स्टार्ट किया गया था 1698 में सर पीटर द ग्रेट के द्वारा, और ये अवार्ड मोदी जी को अभी रिसेंटली मिला, आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले अपने मोदी जी जो है उन्होंने भूटान से ऑर्डर ऑफ गैलेपो अवार्ड मिला था, इजिप्ट से ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड मिला था, और फ्रांस से लीगन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला था, और ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस से मिला था जो सेकंड बेस्ट अवार्ड है, और कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ये फिजी से उनको मिला था। तो ये काफ़ी है। और आपको पता होना चाहिए कि रसिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को है, वहाँ का मनी जो है, मुद्रा जो है वो रूबल है, और रसिया में ही बैकाल झील मिलता है, लेक जो लार्जेस्ट है। ऑपरेशन गंगा यहीं के लिए स्टार्ट हुआ था, और इंडिया और रसिया का एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंदिरा, और रशियन रिवोल्यूशन है वो लेनिन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और अगर अब नेक्स्ट में आए कि विच स्टेट ब्रिंग गिग वर्कर रिलेटेड बिल फॉर देयर वर्क स्टेबिलिटी इन स्टेट, तो कर्नाटका जो है वो भी सेकंड स्टेट बना है, और गिग वर्कर के लिए बिल लाने वाला इससे पहले राजस्थान था जो इंट्रोड्यूस किया था। सो गिग वर्कर में अगर आपसे पूछे कि कौन पहला स्टेट है तो राजस्थान, और अभी अभी किसने किया है तो सेकेंड पे कर्नाटका। और अब इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को किन्होंने, मतलब द इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज़ जो है वो रिलेटेड टू कौन से डिजीज़ से है, तो ये फैटी लीवर डिजीज़ से है, जो कि अभी लॉन्च किया गया है कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो अभी क्लीनेस्ट के लिए किया गया है कि विच कंट्री इज क्लीनेस्ट
अंडर टॉप 10 लिस्ट। तो अभी इसको जो फर्स्ट नंबर पे आया वो है एस्टोनिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच स्टेट प्रपोजेड ए रजिस्ट्रेशन फी ऑन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल। तो जो अभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल पे फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए किया है वो यूपी गवर्नमेंट ने किया है। न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा, तो इन पंकज अग्रवाल बने हैं। और बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024, तो इसने महाराष्ट्र जीते हैं जो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड ऑफ 2024 बने हैं। हु सेलेक्टेड एज जून 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो जून 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। तो ये जो था वो आपका 10 जुलाई का सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। तो अब मैं आपको 11th ऑफ जुलाई पे लेके चलूँगा। तो 11th ऑफ जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, जो जहाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का इस बार का थीम है लीव नो वन बिहाइंड एंड काउंट एवरीवन। और आज अगर मैं करंट अफेयर 11 जुलाई का इंपॉर्टेंट बताऊंगा तो पहले नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, हु बिकेम हेड कोच ऑफ टीम इंडिया। तो गौतम गंभीर अभी हेड कोच बने हैं टीम इंडिया का और ये 2027 तक टीम इंडिया के हेड कोच रहेंगे। और अभी 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री मीटिंग कहाँ पे होगा, तो 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री मीटिंग सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में होगा, जिसको ओम बिरला लीड करेंगे इंडिया के तरफ से। क्वेश्चन नंबर 3, हु विल लॉन्च पोलारिस डाउन मिशन। तो स्पेस एक्स के द्वारा किया जाएगा जो एलन मस्क का कंपनी है, और इट विल टेक 2 पीपल फॉर स्पेस वॉक। तो 2 लोगों को स्पेस वॉक पे स्पेस एक्स लेके जाएगा जो एलन मस्क का कंपनी है। हु स्पॉन्सर्ड पेरिस ओलंपिक 2024 फॉर इंडियन टीम। तो जब अभी पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है, इसको स्पॉन्सर्ड किया गया है गौतम अडानी के द्वारा। और 5वां नंबर क्वेश्चन अगर देखें, यूनेस्को एडेड हाउ मैनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व। तो यूनेस्को ने अभी 11 बायोस्फीयर रिजर्व को ऐड किया है। और 6ठे नंबर क्वेश्चन, बीएसएफ स्टार्टेड ग्रो विद द ट्रीज कैंपेन एट विच प्लेस। तो ग्रो विद द ट्रीज कैंपेन बीएसएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। और बिम्स्टेक सेकेंड मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुआ है, तो बिम्स्टेक का जो सेकेंड मीटिंग है वो दिल्ली में हुआ है। और इससे पहले अगर फर्स्ट का देखेंगे कि फर्स्ट बिम्स्टेक मीटिंग कहाँ पे हुआ था, तो फर्स्ट बिम्स्टेक मीटिंग जो है वो बैंकॉक में हुआ था। 8वें नंबर का क्वेश्चन कि विच गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव स्टूडेंट फ्री बस पास अप टू 150 किलोमीटर। तो ये पहले भी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे 60 किलोमीटर तक दिया जा रहा था, जिसको बढ़ा के अभी 150 किलोमीटर तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजिंगजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये केरला में है। ब्राउन पाम सिवेट सीन इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ब्राउन पाम सिवेट सीन इन कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि महाराष्ट्र में है। 12वें नंबर का क्वेश्चन अगर देखते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामक डिवाइस HS-77 इज फाउंड बाई विच कंट्री। तो ये चाइना के द्वारा किया गया है टोकामक डिवाइस H70। 13 नंबर क्वेश्चन अगर देखें, कैमकॉप्टर S100 एक अनआर्म्ड व्हीकल है। तो इसको कौन से कंट्री से एक्वायर्ड किया गया है, तो ये जो अनआर्म्ड व्हीकल है इसको ऑस्ट्रेलिया के कंपनी स्काईवल से एक्वायर्ड किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन होगा कि विच सिटी रिसेंटली ऑर्गेनाइज द दिव्य कला मेला एंड दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम। तो ये जो है ये भुवनेश्वर सिटी के द्वारा किया गया है, जिसमें जो भी हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए ये किया गया है ऑर्गेनाइज। 15 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज मालाबार जो किसके किसके बीच होता है, तो इंडिया एंड यूएसए के बीच होता है। एंड 16 नंबर क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये अच्छे से याद रखना चाहिए कि विच IIT प्रपोजेड बीटेक एजुकेशन इन हिंदी लैंग्वेज। तो जो बीटेक एजुकेशन है वो हिंदी लैंग्वेज में वो IIT जोधपुर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट प्रपोजेज EWS एंड OBC फीमेल टू गेट फ्री हायर एजुकेशन। तो अभी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, जहाँ पे EWS एंड OBC के जितने भी फीमेल हैं वो हायर एजुकेशन फ्री में ले सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा। तो ये 10th और 11 जुलाई के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
उसको मैंने जिस्ट के साथ आपको ला के दिया, जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसको रिवाइज़ करें। और मैंने लास्ट बार आपको रामसर वेटलैंड साइट के बताया था, और मैं नेक्स्ट अभी जो भी 13 जुलाई का आएगा उसमें मैं आपको कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो भी है इंडिया के अंदर, तो नंबर वाइज 1 2 3 4 करके कहाँ सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसिंग होता है, कितना उनके पास कैपेसिटी है, इस सब को मैं मार्क करके आपको मैप पे दूंगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सारे मैप जो भी मैं देता हूँ, अभी तक मैंने आपको 10 मैप बता चुका हूँ, सारे आप एक इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप कहीं भी स्टोर से जाके ख़रीद लें और उसको घर पे बैठ के उस पर मार्क करें। और ये काफ़ी आपको बेनिफिशियल रहेगा कमिंग एग्जामिनेशन में, और काफ़ी कुछ इससे आपको याद हो जाएगा और काफ़ी रिवीजन हो जाएगा। तो मैं आपको अगले लेक्चर में मैप मार्क करके दूंगा, और मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने हर वीडियो में एक नया टॉपिक डाला है, मैप के ही थ्रू डाला है, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर ट्रायंगल, क्रीसेंट, वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर वेटलैंड साइट, और अभी मैं लाऊंगा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज एंड कोल मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, ताकि आपका रिवीजन भी होते रहे और आप इन सबको याद करें और बहुत सारे एग्जाम में आपके बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू फाइटर्स एंड हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू सो मच।